गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रेस रिस्पांस, जिसमें हमने कोर्टिसोल के बारे में डिस्कस किया था, कैटेकोलामाइंस के बारे में डिस्कस किया था। और ग्रुप में बेटा मैसेज कर दें जल्दी से, बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएं। ओके, तो आपको क्या लगता है स्ट्रेस से क्या क्या होता है? इसमें हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी गैस के बारे में कि जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम क्या होता है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम, अलार्मिंग स्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस स्टेज क्या होती है, एंड एग्जॉशन स्टेज क्या होती है। ये तीनों स्टेजेस हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। वेल, and we have different terminologies like overview of terminologies in which we have already discussed stress क्या है, coping क्या है, EU stress क्या है, distress क्या है, etc. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी सिस्टम, और बॉडी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेस के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, especially release of cortisol and release of catecholamines that are very important and affecting most of the body systems and producing different disorders. For example, anxiety is there, depression is there, insomnia is there. These are the examples of stress. And instead of that, we also discuss about the immune system, the immune response in the stress, how immune system is responding, what will happen to our body, and what are the effects of stress on the body as well. We also already discussed the HPA axis. HPA axis stands for hypothalamic pituitary adrenal axis, जिसमें हमने डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। वन वाज एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, and higher level of cortisol, what are the effects, and especially source of clinical stress we have discussed for the patients and for nurses as well. And we have already discussed these stages like alarming stage है, resistance stage है, exhaustion stage है, and what are the difference between catecholamines and corticosteroids we have discussed. Okay, so what you have learned yesterday, hope so. Today we are going to discuss something new. For example, इधर के एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, जो कि हमने HPA एक्सिस के बारे में बात की थी। तो इसमें कैटेकोलामाइंस अगर रिलीज होंगे तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली वी हैव डिस्कस्ड दैट कि इट विल इंक्रीज आवर कार्डियक आउटपुट, इट विल इंक्रीज आवर स्ट्रोक वॉल्यूम, इट विल इंक्रीज हार्ट रेट, एंड अल्टीमेटली ब्लड pressure will be increased, dilate airway, dilute pupils, and mobilizes glucose, as well as causes vasomotor changes. For example, vasoconstriction will be there, decreased digestion, enhances coagulation, and if the cortisols are released, the corticosteroids are released, then elevated glucose level. Corticosteroids mean there will be a release of cortisol and increase amino acids, ultimately increase sodium reabsorption and increase extracellular volume, as well as inhibit histamine and bradykinin and suppress the immune response. Okay, तो रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली के अडाप्टेशन अकर्स, एक्टिवेशन ऑफ HPA सिस्टम या HPA एक्सिस कंटिन्यूज, द स्ट्रेस में बी रिजॉल्व्ड एंड द बॉडी रिटर्न्स टू होम्योस्टेसिस. इट माइट बी ए कंडीशन रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर, इट माइट बी ए कंडीशन के बॉडी में रिटर्न टू होम्योस्टेसिस और मे ट्राई टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस and may progress to exhaustion. And third one stage is exhaustion. Exhaustion means ke might be there will be a fatigue in the immune system, there will be a fatigue in the muscles, there will be fatigue in the body organ system. Ultimately what will happen, stress continues as the resources are depleted. Okay, but the resources are there, all the resources will be depleted due to stress, and once there will be a depletion of resources, exhaustion state will occurs. And what will happen in the exhaustion stage ultimately occurs when the demand of stress exceeds the person's ability to adapt. When the adaptability is exceeded, when the ability to adapt is exceeded, definitely exhaustion stage will be there, and there will be an injury, and ultimately functioning will decline and may result in health problems. Might be a physical symptom occurs, might be a mental symptom occurs, and later on we will discuss about the different signs and symptoms that are occurring due to stress. Okay, so in the exhaustion stage what will happen, basically it will causes injury, and it might be eternal injury, it might be a injury to mental illness, it might be a lead to physical symptoms.
there are certain types of illness that occurs due to stress, and especially when the demand of stress exceeds this person's ability to adapt, there will be an injury. We have discussed in the adaptive stages like hypertrophy है, atrophy है, hyperplasia है, anaplasia है, metaplasia है. These are certain conditions, but when the adaptation is exceeded, when the limits of adaptation is exceeded, there will be an injury. Ultimately, once there will be an injury, functioning will be declining, and may result in health problems. Physical symptoms and mental symptoms will occur, and these are the signs and symptoms of stress. For example, cognitive symptoms. If we talk about or discuss about the cognitive symptoms, might be otherwise decreased concentration. Person is unable to think. Person is unable to learn. Person is unable to talk what he is talking about, and comprehension is there, and memory loss might be there. He might be a person will be forgetfulness. He did not remember what he ate yesterday. He did not recognize the person he was talking. And exhaustion stage ultimately leads to these signs and symptoms. Instead of that, behavioral, if we talk about the behavioralism, behavioral problems, ultimately irritability is there, withdrawal effect is there, violence is there. Cognitive means related to thinking ability. Cognition, thinking ability of skill will be reduced. And if we talk about the emotions, definitely you will feel fears. Anxiety is there, depression, fatigue. Ultimately, if a person is suffering from the exhaustion stage, जब वो कहते हैं ना कि आज मेरी बस हो गई है, इतनी मुझे anxiety है या इतनी मुझे stress है, तो what will happen? That's the sign and symptoms will occur. His cognition will be reduced, his behavior will be violated, और वो गुस्से में आके एक दूसरे को मारना शुरू कर देता है, इवन कि अपने आप को हार्म करना शुरू कर देते हैं. These are symptoms that occurring with every person who is suffering from the stress. Okay, if we talk about the physiological increase blood pressure, definitely जब किसी को गुस्सा आता है, जब कोई स्ट्रेस में होता है, तो अल्टीमेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के कैटेकोलामाइंस विल बी रिलीज्ड. अब कैटेकोलामाइंस वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करवा रहे होते हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे होते हैं, कार्डिक आउटपुट बढ़ा रहे होते हैं, and once there will be increase of cardiac output, ultimately it will lead to increase in the blood pressure. Heart rate increases, respiration increases, and somatic symptoms will occur, and decreased immune response definitely will occur. That's why he is more prone to infections, more prone to disease, more prone to illness. If we talk about the genetics and developments, definitely what will happen genes and development में genetics के अंदर क्या होगा कि genes control the stress responses, and individuals have different responses to stress. Definitely every person's coping mechanism is different. हर बंदे को एक सेम लेवल का स्ट्रेस दिया जाए तो हर बंदा एक डिफरेंट वे से कोप अप करेगा. ओके, इम्यून रिस्पांस कैसे रिड्यूस हो गया? बेटा पहली चीज तो है कि इम्यून रिस्पांस के लिए पहला फिगर, पहला ट्राइएंगल, पहला ट्रिगर कार्टिसोल है. इसके अलावा स्टीरॉइड्स बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, और स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कोई पेशेंट्स आता है जिसकी इंजरी हो गई है, या कोई पेशेंट्स आता है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गया है. अब बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है, या कोई पेशेंट्स आता है आपके पास ब्लड रिएक्शन उसका हो गया है, तो बॉडी के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है. क्राइसिस सिचुएशन क्या है कि एक ह्यूमन नेचर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो आप क्या करते हैं? उसको स्टीरॉइड दे रहे होते हैं. आप आर्टिफिशियल स्टीरॉइड दे रहे हैं, और उसकी बॉडी के अंदर सेम टाइम पे भी स्टीरॉइड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. अगर आप एक्सटर्नली स्टीरॉइड नहीं देंगे तो वो सिस्टम उसको भी कोप अप कर लेगा, लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए. सेम कंडीशन विद द स्ट्रेस पर्सन, कि जब स्ट्रेस पर्सन होएगा तो उसके अंदर सर्टेन स्टीरॉइड्स रिलीज होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है. इसके अलावा वो पेशेंट्स एंजाइटी से सफर कर रहा होता है, या फेयर से सफर कर रहा होता है, डिप्रेस से सफर कर रहा होता है, HCl सिक्रीट हो रहा होता है, पेप्टिक अल्सरेशन हो रही होती है. सेम कंडीशन, कार्टिसोल इम्यूनोसप्रेसेंट है, स्टीरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो रहा होता है. गॉट इट? ओके, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस. जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर बंदे को अगर एक सेम लेवल की स्ट्रेस देंगे तो एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स. हर बंदा उस स्ट्रेस को डिफरेंट पाथवे से, डिफरेंट वे से कोप अप करता है. एंड देयर इज ए जेनेटिक कंपोनेंट्स, और जेनेटिक कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है? फेयरफुल बिहेवियर हो सकता है उसका.
एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेज या डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन अफेक्ट पर्सन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब एक पेशेंट या एक पर्सन एक दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो चुका है, फर्स्ट एक्सपोजर टू हॉस्पिटल इज मोर एंजाइटिक। अगर एक बंदा पहली दफ़ा हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है तो उसको ज़्यादा स्ट्रेस होएगी, और एक वही बंदा अगर सेकेंड टाइम के लिए आ रहा है तो उसको कम स्ट्रेस होएगी। दैट इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन इफेक्ट पर्सन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। गॉट इट? कि अगर एक बंदा फर्स्ट टाइम डरा है, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है तो उसका एंजाइटी का लेवल ज़्यादा होगा, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होगा। अगर वही पर्सन सेकंड टाइम आ रहा है तो अल्टीमेटली उन चीज़ों से हाउ टू नो हो चुका होता है, एंड वंस ही विल बी हाउ टू नो, अल्टीमेटली हिज लेवल ऑफ स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड। सोशल सपोर्ट, उसके साथ कुछ पेयर्स आ रहे हैं, पेयर ग्रुपिंग है, उसके रिलेटिव्स आ रहे हैं, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे विल प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वो सपोर्ट उसके लिए प्रोटेक्टिव होएगी। जो उसको हॉस्पिटल्स के अंदर लेके आ रहे हैं वो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, आप हॉस्पिटल चलें, आप ठीक हो जाएंगे, उसकी इमोशनल थेरेपी कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका सोशल इफेक्ट होएगा, उसको सोशल सपोर्ट मिल रही होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अर्ली लाइफ स्ट्रेस इंक्रीजेस स्ट्रेस रिएक्टिविटी एज एन अडल्ट। अगर लाइफ स्ट्रेस इनिशियल स्टेज के अंदर आ जाती है, व्हेन द पर्सन इज इन डेवलपिंग अ ग्रोइंग स्टेज, that will lead to deformity in the immune system, deformity in the behavioral system, deformity in the cognition system, deformity in the neuromuscular system. Multiple problems will occur. Even a person can die in his stress. If he is unable to cope, definitely it will lead to death. Okay. And what are the coping mechanisms? There are, one thing is coping, another one is resilience. Coping क्या है? Ability to control emotions. Every person have different ability to cope the emotions. Some people are weeping, some people are moving towards singing a song, someone moving towards some kinds of therapy. These are coping mechanisms. And every person has different ability to control the emotions. And ability to perceive reality. Every person have different ability to perceive the reality. What is happening around him and what actually is happening with him. कि reality में क्या है और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. And ability to think rationally, and after that he has a solid mind. He can think, he can realize what is better for him or her and what can make a betterment. Ability to problem solving, definitely every person has different ability to solve a problem. और हर बंदा क्या करता है, मेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि इसको कैसे करना है, डिफरेंट ऑप्शंस लेके आता है माइंड के अंदर कि ये भी सूटेबल हो सकती है, ये भी सूटेबल हो सकती है, ये भी सूटेबल हो सकती है. तो एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट स्ट्रेटेजिक सॉल्विंग प्रॉब्लम, strategic planning for problem solving. And culturally defined, every person have different cultures, and every person will behave according to their culture. And if we talk about the resilience, definitely the ability to bounce back. Resilience, आपको किसी ने चपेट मारी, आप उसको चपेट मार देंगे, that is a resilience. लेकिन कोपिंग में क्या है कि आप उसको चपेट नहीं मारेंगे, बल्कि उसका एक और पाथवे ढूंढेंगे कि इससे मैंने बदला कैसे लेना है, आप उसको प्रॉपरली ट्रीट करेंगे. लेकिन रेजिलियंस में क्या है कि अगर आपके साथ कोई पेशेंट मिसबिहेव कर रहा है, आप उसके साथ मिसबिहेव अगर कर जाएंगे तो दैट इज ए रेजिलियंस. अगर आप उसको समझा देंगे कि भाई ऐसे नहीं करना, हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह, तो आपकी जो कोपिंग एबिलिटी है दैट इज कम्स अंडर द कोपिंग मैकेनिज्म. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द पॉजिटिव कैपेसिटी टू कोप विद द स्ट्रेस इज रेजिलियंस. एक्ट अकॉर्डिंगली and in positive way. Once you are acting, your body language, your verbal communications, everything matters, and provide resistance to negative events. Like hardiness है, आप एक resistance provide करें. Resourcefulness है, आप एक resistance provide करें towards the negative events. If you're occurring in the positive, definitely you have to stay with there. And coping, there are adaptive coping, contribute to resolution of the stress response. कोई स्ट्रेस अकर हुई है, आप उसके अंदर अडाप्टेशन लेके आए कि आपने उसको कोप अप कैसे करना है.
इंस्टेड ऑफ दैट maladaptive coping is there, strategies that causes further problem. अगर आप उसको प्रॉपरली कोप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपको फर्दर इलनेस को लीड करेंगे। रेजिलेंस बेटा जो पॉजिटिव है उसमें ये है कि आप उस इवेंट्स को अवॉइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप पेशेंट्स के साथ लड़ाई की है, पेशेंट ने आपके साथ लड़ाई की है, आपने पेशेंट के साथ लड़ाई की है क्या, रेजिलेंस है, जैसे आपने किया वैसे पेशेंट्स ने कर दिया। लेकिन पॉजिटिव क्या है, आपने जाके उसकी कंप्लेन नहीं की, आपने जाके उसकी किसी और स्टाफ को कंप्लेन नहीं की कि फलां पेशेंट्स बड़ा बुरा है, या पेशेंट्स ने जाके आपकी कंप्लेन नहीं की कि फलां स्टाफ बड़ी बुरी है। ये पॉजिटिव रेजिलेंस है। अलीना गॉट इट? कोपिंग बेटा ये है कि अगर पेशेंट्स ने आपके साथ बदतमीजी की, आप चुप करके चली गई हैं, आपने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी, आपने सोचा चल ठीक है वो पेशेंट्स है उसने कर लिया खैर है, या आपने पेशेंट्स के साथ कर ली, पेशेंट चुप करके चला गया। बेटा थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इवेंट्स, हार्डीनेस। आपके पास अगर कोई पावर है, आप प्रोटोकॉल पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स की बात ले लेते हैं, प्रोटोकॉल पेशेंट्स हैं, वो आपको कहता है कि मैंने ये करना ही करना है, मैंने आपको टर्मिनेट करवा के छोड़ना है। आपकी और पेशेंट्स की लड़ाई हो गई है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैमूना, कि पेशेंट्स की और आपकी लड़ाई हो गई है, पेशेंट्स आपको कहता है कि मैंने आपको टर्मिनेट करवा के छोड़ना है। दैट इज नोन एज हार्डीनेस, दैट इज नोन एज रिसोर्सफुलनेस। उसके पास पावर है, ही कैन डू एवरीथिंग। इसलिए इन नेगेटिव इवेंट्स से बचना चाहिए। नो रेजिलियंस न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नो, ये नहीं है। रेजिलियंस ये है कि बेसिकली है क्या कि एबिलिटी टू बाउंस बैक, जैसा आपने किया उसने भी आपके साथ वैसा कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद दूसरों को आपका गिला नहीं करना चाहिए, आपको दूसरों के सामने गिला नहीं करना चाहिए कि फलां बंदा ऐसा है, फलां बंदा ऐसा है, फलां बुरा है, फलां अच्छा है, इस तरह की ये चीज़ें नहीं लेके आनी। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आप एक ही चीज़ के ऊपर अटक गए हैं कि मैंने इसके साथ ये करना है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, दैट इज प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू नेगेटिव थॉट्स। इसलिए आपको उन नेगेटिव थॉट्स को प्रोवोक नहीं करना बल्कि माइंड से निकालना है। अगर प्रोवोक करते रहेंगे अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू समवन्स डेथ। किसी के साथ लड़ाई हो गई है, उसके बाद आपने उसको आके कत्ल कर दिया है, दैट इज ए नेगेटिव इवेंट्स। लेकिन अगर किसी के साथ लड़ाई हो गई है, आपने क्या किया, उसके बाद आपने आके उसको माफ कर दिया है। तो नेगेटिव इवेंट्स क्या है कि आपने उसको कत्ल कर दिया है, पॉजिटिव इवेंट्स क्या है कि आपने उसको माफ कर दिया है। गॉट इट? ओके, adaptive copings, you have a special ability to resolve the problems. Like आपकी हेड नर्स है, वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो फौरन से पहले आ जाती है कि चल खैर है, दोनों की सुलह करा देती है। अडाप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर। लेकिन मॉल अडाप्टिव कोपिंग की कोई बंदा आपकी सुनता ही नहीं है। आपने क्या किया, उसी हेड नर्स को बताया कि ठीक है ये मेरे साथ मसला हुआ है, उसके अंदर कोपिंग एबिलिटी ही नहीं है, उसने आपके वार्ड को आके बात ही नहीं की, किसी से बात ही नहीं की। तो इसमें क्या होगा, आपके अंदर फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। एंड एक्टिव कोपिंग क्या है, एक्टिवली सीकिंग रेजोल्यूशन टू स्ट्रेस। उसके बाद आपने हर बंदे से डिस्कस किया कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन बताएं, दैट इज एक्टिंग कोपिंग। गॉट इट? अडाप्टिव, मॉल अडाप्टिव और एक्टिव कोपिंग के अंदर ये कोपिंग की स्ट्रेटजीज हैं। और ऑलवेज प्रमोट अडाप्टिव कोपिंग। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी, और उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है। फॉर एग्जांपल, जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस होती है, आपने उसके लिए एक गोल बनाना है कि इसको मैंने अचीव कैसे करना है। उसके बाद आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स, हैव ए बैकअप प्लान। अगर एक प्लान आपका फेल हो जाता है तो सेम टाइम पे आपका प्लान बी एग्जीक्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपने उसके लिए प्लानिंग की, और दैट प्लानिंग वाज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपने 2 गोल सेट किए। सपोज अगर एक गोल ए फेल होता है तो आपके बैकअप में गोल बी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि अगर गोल ए फेल होता है तो आप गोल बी को इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद रिफ्रेमिंग है,
चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स, अपनी थिंकिंग ही चेंज कर लें, आपको उस तरीके से देखना ही छोड़ दें, जो आपको स्ट्रेस काज करती हैं आप उस तरीके से सोचना ही छोड़ दें। और एट द एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स, टेक टाइम आउट फॉर द लीयर्स टाइम के लिए जाएं, एक दूसरे को टाइम दें, लीयर्स टाइम, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, एंड यूटिलाइज एग्जिस्टिंग सोशल सपोर्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उस बंदे के पास, ताकि वो आपको एक सोल्यूशन दे सके। जब आपके पास सोल्यूशन होएगा अल्टीमेटली आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ट्रेनिंग, गो फॉर ट्रेनिंग, प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेसफुल इवेंट्स। अगर कोई स्ट्रेस होती है तो आप क्या करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी आउटिंग की किसी अच्छी जगह की आउटिंग कर लें। इंस्टेड ऑफ दैट गो फॉर न्यूट्रिशनल हैबिट्स, आप अच्छा हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें, अपने मील को स्किप करना छोड़ दें, फास्टिंग को छोड़ दें, हेल्दी मीट की तरफ आ जाएं, हेल्दी डाइट की तरफ आ जाएं और एक्सरसाइज करें। दीज आर एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। अगर आपको स्ट्रेस होती है डेफिनेटली गो फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेस, and 10 to 15 minutes की exercise will definitely going to release your stress, and sleep and get adequate sleep, avoid fatigue। अगर आप जितनी ज़्यादा adequate sleep की तरफ लेके जाएंगे, deep sleep को प्रमोट करेंगे, ultimately your level of stress will be reduced। and if we go for avoid maladaptive coping, इनसे आपने avoid करना है, blurring of boundaries नहीं करनी, अवॉइडेंस और विड्रॉल की तरफ जाना है, नेगेटिव एटीट्यूड्स को ख़त्म करना है, एंगर आउटबर्स्ट की तरफ नहीं जाना, अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ नहीं जाना, होपलेसनेस की तरफ नहीं जाना, नेगेटिव आपके अंदर सेल्फ टॉक, नेगेटिव थिंकिंग प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसकी तरफ नहीं जाना, रिसेंटमेंट की तरफ नहीं जाना, वायलेंस की तरफ नहीं जाना। इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। कोई बाउंड्री नहीं सेट करनी कि मैंने ये काम करना है और यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं करना। नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपके अंदर। विड्रॉल स्लोली और प्रोग्रेसली भी उन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, अवॉइड करना, विड्रॉ करना, टेपर ऑफ करना। रिसेंटमेंट, ओके, दोबारा से उन्हीं चीज़ों को प्रोवोक करते रहना। रिसेंटमेंट, दोबारा वही चीज़ें माइंड के अंदर लेके आना, एक दफ़ा आपकी माइंड से निकल गई हैं फिर दोबारा उन्हीं को प्रोवोक करना कि अच्छा मेरे साथ ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ऐसे नहीं करना। और पॉजिटिव रेजिलियंस फैक्टर्स, पॉजिटिव रोल मॉडल्स होना चाहिए आपको। ऑप्टिमिज्म की तरफ हर बंदा एक स्पेशल ग्रूमिंग क्राइटेरिया के अंदर फॉल करना चाहिए। लोग उसको देख के उसके एग्जाम्पल्स ने कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक है, इतना चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इतना हार्ड वर्किंग है, उसका ह्यूमर की तरफ जाना है, मॉरल कंपास की तरफ जाना है, ऑल्ट्रिज्म की तरफ जाना है, रिलीजियन और स्पिरिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सोशल सपोर्ट, पेयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए जिससे आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म, इसमें पॉजिटिव बिलीव्स को आपने प्रमोट करना है दैट आर एसोसिएटेड विद द वेल बीइंग। कोग्निटिव रिफॉर्मिंग के लिए जाना है आपने, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अपने अंदर लेके आनी है, एंड रिफ्यूट द नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव थिंकिंग को गुड बाई करना है, एंड बिलीव इन द मीनिंगफुल कॉज, एंड if important to acknowledge relevant negative factors will occur, and that is it. Review. Stress is a part of everyday life. It can promote growth and competency, and if unrelenting or overwhelming, it can cause adverse effects, और इन adverse effects से आपने बचना है। अच्छा, अल्ट्रिज्म बेटा सेल्फलेसनेस होती है। Okay, instead of that
कोपिंग स्ट्रेटजीज को इन्हांस करना है, रेजिलियंस की तरफ, पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करना है, एंड इसलिए आप इन स्ट्रेस इफेक्ट से बच के एक प्रमोट हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, एंड आई विल शेयर द स्लाइड एट 4 PM डेफिनेटली। यहाँ तक कोई क्वेरी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लेट मी नो। बेटा स्ट्रेस ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगी, हेल्थ को प्रमोट करेगी। लेकिन अगर स्ट्रेस आप रिड्यूस करेंगे, एडवर्स इफेक्ट से बचेंगे, देन जाके आपकी हेल्थ प्रमोट होएगी। ओके, मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर लूँ। 21 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके बेटा, कर देता हूँ, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। एग्जैक्टली बेटा, स्ट्रेस में ओबेसिटी हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। लेकिन बेटा आप ये लिखा हुआ है कि इट कैन प्रमोट ग्रोथ एंड कॉम्पिटेंसी, अगर पॉजिटिव वे के अंदर लेंगे तो। फॉर एग्जांपल एग्जाम की स्ट्रेस है आपकी, आपको कॉम्पिटेंट बनाएगी। बिफोर नाइट आपको एग्जाम की स्ट्रेस है कि मैंने कल पेपर है, और आपने स्ट्रेस ली और आपने उसमें पढ़ा है, आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस हुई है, देन डेफिनेटली इट विल प्रमोट ग्रोथ एंड कॉम्पिटेंसी। ओबेसिटी का बेटा मैकेनिज्म ये होएगा कि पहली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ना लिप्टन हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है, और ये आपकी एपिटाइट को इंक्रीज करवाता है। जब आपका स्ट्रेस का लेवल होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी बॉडी के अंदर लेप्टन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपकी एपिटाइट को इंक्रीज करवाएगा, आप स्ट्रेस में हर चीज़ खाना शुरू कर देंगे। और दूसरी, बॉडी के अंदर सर्टेन मैकेनिज्म्स होते हैं, लाइक लिपोलाइसिस हो रही होती है, वो नहीं होएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होएगा। इसके अलावा इंसुलिन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट एग्जिस्ट करेगी। इस वजह से आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज होता जाता है। ओके, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे बेटा, उनकी अटेंडेंस हो गई है, और जो बाकी नहीं थे उनका अल्लाह ही हाफिज है। ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट क्लास, next coming Monday at 4 to 5 PM, I think.
बी ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।